Yes. So today our topic is like spasmodic dysmenorrhea and related univalve. इसमें आज हम बेसिकली देखेंगे कि हम ओपीडी में किस तरह के पेशेंट्स अगर आते हैं तो डिस्मेनोरिया वाले पेशेंट्स जब आते हैं हमारे यहाँ तो क्या सिम्टम्स लेके आते हैं या फिर उनका प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा और हम उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए या कैसे अप्रोच करना चाहिए। बेसिक चीजें हमें उनको क्या पूछना चाहिए। और जब हम ऐसे पेशेंट्स बेसिकली एडोलसेंट वाले जो पेशेंट्स प्राइमरी डिस्मेनोरिया स्पास्मेटिक डिस्मेनोरिया के साथ हमारे ओपीडी में आते हैं तो उनको काउंसलिंग कैसे देना चाहिए, उनको एजुकेट कैसा करना चाहिए हम लोगों को, और उनको हाइजीन के बारे में कैसे बताना है और डाइट के बारे में कैसे बताना है। ये सभी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रैक्टिस है। तो हम पहले थोड़ा सा देखेंगे कि व्हाट इज स्पैस्मोडिक डिस्मेनोरिया और क्या हमको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए ऐसे कंडीशन में, व्हाट वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट व्हेन वी आर लुकिंग इनटू सच काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। तो व्हाट डज द meaning of the word mean? It is like spasmodic dysmenorrhea, spasming increased in muscle tone or contraction, and dysmenorrhea is pain during menstruation. Then the pain, where it would be like when the patient will come, we should ask for where is the pain exactly presenting, or what all are the sites where you see the pain. If at all the patient tells it is in the hypogastric region, that is the lower abdomen, then we it is confined only to that region. It is a uterine pain, and it may radiate only up to the inner aspect of the thighs but not extending below knees, है ना। अगर नीज के नीचे गया या फिर पैरों के टोस तक गया तो वो साइटिका भी हो सकता है। सो यू हैव टू डिफरेंशिएट and we have to ask like what kind of pain it is and how it is radiating up to what level. Then ovarian or tubal, it is felt in the lower abdomen and immediately above the inguinal canal, that is on the sides of the tubal appendages जहां पे जाते हैं वहां पे पेन है क्या ड्यूरिंग menstruation or prior to menstruation. We will just see where it is like. Then backache of pelvic origin रहा तो it is in the midline of the back, never higher than S1, that is sacral bone के ऊपर नहीं जाएगा, S1 के ऊपर नहीं जाएगा, and there is no local tenderness. See, there is importance of this in treatment aspect. Why we are telling is there is some importance why we have to keep in mind the site of the पेन, क्योंकि हमको ट्रीटमेंट करने के लिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। why we have put this in the chart or the table is to make you understand how it will be helpful for us in treating the patients. Okay. Then nature of onset and duration. How is the nature? Sudden aega. I mean, like when she's getting her menses, whether it is sudden or after getting menses, it is like first day nahi hai, then second day it may start, or it is like prior to menstruation, or it is post menstruation. That is also important. Or whether it is during the menstruation and continuing even after the menstruation, that is to be asked for. Then character, whether there is burning pain, to understand the dosha which is इन्वॉल्व, लाइक बर्निंग है तो पित्त है, थ्रोबिंग है, पेन वात जब प्रिकिंग है, एक्सक्रूशिएटिंग, वेदर इट इज दैट मच पेनफुल दैट शी कैन नॉट डू हर डेली एक्टिविटीज, इतना पेन है। और इंटेंसिटी कैसा है, लाइक वेदर वो रेस्ट कर रहे हैं एंड इट इज रिड्यूसिंग, देन देर इज सम लीजन, कुछ तो सिस्ट होगा या फिर ट्यूमर होगा या फिर फाइब्रॉइड होगा या फिर पॉलिप होगा। तो रेस्ट करने से ड्यूरिंग मेंसेस तो वो इरिटेशन या फिर कंजेशन नहीं होगा एंड फ्रिक्शन नहीं होगा तो पेन नहीं होगा। सो वेदर इट इज ऑन रेस्ट इट इज reducing, or when we are working and it is painful, that has to be asked for. And कैसा है, like how is the patient, like for example primary dysmenorrhea और spasmodic में हम देखते हैं कि the adolescent girl in the school colleges वर्क एरिया पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, विल सी ना, एक पेन है तो वो ऐसे हाथ पकड़ के यो दर्द हो रहा है ऐसे चलते हैं, या फिर दिल फर्स्ट ओनली कम एंड टेल टू द प्रोफेसर or the teacher whoever is there, like today I am having severe pain abdomen ma'am, so there is my periods and I'm so much of distress, this kind of presentation they will give us. And we have to understand the dosha which is causing the pain in such cases. Then relationship, like menstruation कैसा कंडीशन में उसको पेन होता है, that is like
पेन विद द फ्लो। फिर लाइक उदावर्तिनी में हम कैसे देखते हैं, अगर क्लॉट्स पास हो जाएंगे, तत्क्षम लभते सुखम, जब वो क्लॉट्स पास हो जाएगा तो उसको पेन रिलीफ होगा। तो we have to ask like the relation with the pain and the flow, then before है या after menstruation है, we have to ask for that, and days and duration, that is how long it will be, how many days it will be, in which time of the day or night you feel the pain, that also we have to ask for the patient. देन डिस्पेरोनिया है क्या, कोइटस के टाइम दर्द होता है क्या, मिक्चुरेशन के टाइम ड्यूरिंग पासिंग यूरिन आपको दर्द होता है क्या, डेफिकेशन के टाइम में दर्द होता है क्या, इवन सी देर इज condition where because of the stress or the anxiety she may end up with IBS, and then there is problem prior to menses, like उसको mucus mixed stools आएंगे, मंडावली के लिए। mucus mixed stools होने के वजह से भी वहां पे पेन रहेगा, दैट इज लोअर एब्डोमेन पेन रहेगा बिकॉज ऑफ एंजाइटी, आईबीएस रहा तो उसको। फिर ईटिंग व्हाट, लाइक फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं पेशेंट्स को कि व्हेन एवर यू आर हैविंग पीएमएस और यू आर हैविंग डिस्मेनोरिया, तो वी एजुकेट द गर्ल्स नॉट टू ईट जंक फूड्स, लाइक हम उनको बोलते हैं कि वात पित्त कर आहार विहार मत खाइए, वेन एवर यू आर having your periods, when you are expecting your periods, don't eat anything which will do the vata dushti, don't do vega dharanam। तो हम वो पूछते हैं हाँ तो फिर हमको क्या नहीं खाना चाहिए, फिर हमको क्या खाना चाहिए, दिस इज द कॉमन क्वेश्चंस व्हाट वी गेट, देन वी हैव टू टेल देम सी यू आर नॉट सपोज टू ईट चिप्स बिस्किट ब्रेड, और आप क्या बोलते हैं बेसिक ये जो दिन नित्य सुबह में उठ के गड़बड़ है, स्कूल को जाना है कॉलेज को जाना है, कुछ टोस्ट मिल गया खा लिया, ब्रेड खा लिया, या फिर घर में कुछ नहीं मिल रहा है फटाफट पीजी में है हॉस्टल में है जो मिलता है चूड़ा खा लिया, कुछ भी ऐसा जंक खा के चले गए, या फिर टेस्ट नहीं लग रहा है सब में अचार डाल के खाना है। तो वी हैव टू एजुकेट द गर्ल्स एटलीस्ट 1 week prior to your periods, do not eat anything which will vitiate the vata pittam, और वेग धारण तो बिल्कुल भी नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, इवन वुमेन, वाई गर्ल्स, दे डू वेग धारणम, अभी कॉलेज को जाना है लेट हो गए, नहीं नहीं बाद में जाएंगे, क्लास चल रहा है अभी क्लास है आई कैन नॉट गो, देर इज सम ड्यूटी आई हैव टू फिनिश माई ड्यूटी आई गो लेटर ऑन, never do that, never ask the patients, see that is not to be hold, like वेग धारण के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, इवन कैंसर भी होता है वेग धारण से, तो वी हैव टू एजुकेट देम, देन हैविंग प्रॉपर डाइट, लाइक नॉट ईटिंग कर्ड्स, नॉट ईटिंग पिकल्स, नॉट ईटिंग जंक चिप्स, चिप्स तो लड़कियों का फेवरेट है, एक बार पैकेट ओपन कर दिया खाते बैठ जाते हैं, तो वी हैव टू एजुकेट देम नॉट टू ईट एटलीस्ट 1 week प्रायर। बाद में थोड़ा बहुत वो फीमेल है एंड वी कैन नॉट लिटरली स्टॉप एवरीथिंग, दैट इज हर, वो लड़की है तो उसको अच्छा लगेगा ही, वो खाएगी तो थोड़ा खाओ, ज्यादा नहीं खाना है, और ट्राई टू नॉट टू ईट। फिर उनको थोड़ा योगा बताना है, तो ईटिंग मेन हियर द पॉइंट वाज इन रिलेशनशिप टू द ईटिंग, क्या खाने से बढ़ता है, दैट क्वेश्चंस आर टू बी आस्क्ड फॉर एंड एजुकेट फॉर ईटिंग। पोस्चर एंड मूवमेंट, अभी पोस्चर एंड मूवमेंट में क्या है, पोस्चर कंटिन्यूस बैठना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कुछ मूवमेंट ही नहीं है, कुछ योगा नहीं है, वॉक नहीं है, कुछ करते ही नहीं, सुबह में उठने का खाने का बैठने का एक ही जगह में, फिर खाने का फिर क्लास में बैठने का, सो कंटिन्यू, और ऑफिस वर्क लाइक मॉर्निंग टू इवनिंग सिटिंग इन ओनली वन प्लेस डूइंग नथिंग, नो एक्सरसाइज नो मूवमेंट्स नथिंग, और देर आर फ्यू पीपल हु आर कंटिन्यूसली मूविंग, एथलेट्स है जो प्रोफेशनल लाइक कंडक्टर्स है जो कंटिन्यूअसली खड़े रहते हैं, कोई ड्राइविंग करता है, तो कोई काम वाली है, काम वाली बाई है बहुत काम करती है, तो उनको भी हमको एजुकेट करना है कि एटलीस्ट 2 days prior to your menses you see that you will literally rest a little, during your menses also you rest a little, or else because of more friction or the prostaglandins जो secrete होंगे because of too much of movement to there, और स्ट्रेस से जो सिक्रीट होगा वासोप्रेसिन जो आएगा तो उससे भी प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ेंगे, तो वी हैव टू एजुकेट देम टू रेस्ट, सो दिस पोस्चर एंड मूवमेंट वी हैव टू आस्क फॉर एंड ऑल्सो एजुकेट द गर्ल्स। फिर सिस्टमिक डिस्कम्फर्ट्स लाइक नॉजिया वॉमिटिंग फटीग डायरिया हेडेक एंड टैकिकार्डिया मे बी एसोसिएटेड,
ये एसोसिएटेड सिम्टम्स हमको देखने में मिलते हैं। तो वो बेसिकली पित्त प्रकृति की है। तो उनमें कॉमनली हमको नोजिया, वॉमिटिंग, फटी ऐसे मिलेगा। डायरिया बिकॉज ऑफ आईबीएस, टेंशन, एंजाइटी ऑफ गेटिंग पीरियड्स, बहुत सारे लड़कियों को रहता है। स्कूल गोइंग गर्ल्स में तो हम कॉमनली देखते हैं, रेगुलरली उनके माता जी लेके आते हैं, बोलते हैं माई गर्ल इज हैविंग पेन प्रायर टू menses and she will have mucus mixed stools, she gets so anxiety about the periods and full PMS जैसे symptoms भी दिखाती है। तो what we should do, सिंपल उनको काउंसिल करो, एजुकेट करो, गिव देम व्हाट दे वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट द पीरियड्स, टेल देम दिस इज नथिंग, इट इज अ फिजियोलॉजिकल थिंग, इट इज नॉट अ पैथोलॉजिकल थिंग। एंड उनको you first educate the parent that you have to be full patient, fully making her understand that this is nothing to worry, it is like फिजियोलॉजिकली आपको होता है, इससे आपको टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी हो हम आपके साथ है, ऐसे एक काउंसलिंग आप पेरेंट को आपकी बेटी को देने के लिए वी हैव टू एजुकेट देम। तो उससे बहुत कम होगा। फिर टीच देम हाउ टू सिट इन द सन, विटामिन डी, सेरोटोनिन लेवल्स को बढ़ाना है। तो उससे भी क्या होगा, सिक्रीशन ऑफ दिस प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड गेटिंग आईबीएस और एंजाइटी विल रिड्यूस, इट इज अ मूड एनहांसर। तो उनको बोलना है कि एटलीस्ट सुबह का एक 5 मिनट चाय, दूध, वॉट एवर शी इज टेकिंग, sit together in the sunlight and have, it will help in enhancing the serotonin levels in her। तो वो भी उसको हेल्प करेगा। दिस इज हाउ वी हैव एजुकेट। ठीक है। फिर बाद में इट मे बी आपको सॉरी अकम्पनीड बाय वासोमोटर चेंजेस लाइक पेलर, कोल्ड स्वेट्स एंड ऑकेशनल फेंटिंग। ये है क्या, आपको इससे पित्त दृष्टि है क्या, वात पित्त दृष्टि है क्या, ये आपको चेक करना है। और उसको मेन क्या है, डाइट बताना है। क्योंकि औषध तो हम देंगे, नहीं देंगे ऐसा नहीं है, देंगे, लेकिन फिर भी दिनचर्या आजकल के जमाने में वी हैव टू एजुकेट देम फॉर प्रॉपर दिनचर्या एंड ऋतुचर्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल हैव फॉरगॉटन दिनचर्या, दे आर डूइंग व्हाट दे वांट। ऋतु और दिनचर्या का इंपॉर्टेंस एटलीस्ट हम एडोलसेंट गर्ल्स को बताएंगे तो सीखेंगे, एज्ड लोगों को बताएंगे वो बोलते नहीं होता है। Educate now on it. Then rarely syncope and collapses in severe cases may be associated, that is some pathological condition associated। तो इसमें हमको देखने को आएगा प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड स्पैस्मोडिक में क्या है। प्राइमरी है जो साइक्लिक आएगा एंड उसमें कोई आइडेंटिफाइबल पैथोलॉजी नहीं रहता है एंड यूट्राइन ओरिजिन कॉमनली रहेगा एंड डायरेक्टली लिंक टू मेंस्ट्रुएशन विद नो विजिबल पैथोलॉजी। इट इज प्राइमरी इडियोपैथिक और ट्रू डिस्मेनोरिया। स्पैस्मोडिक में क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड डे में ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ द constriction or the contraction, uterine contraction, because of so many factors which you see in the further slides। उसको ज्यादा पेन रहेगा फर्स्ट और सेकेंड डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। थर्ड डे कम होता जाएगा, देन फोर्थ डे इट विल रिड्यूस। दिस इज स्पैस्मोडिक, दैट इज प्राइमरी ओनली। और फ्रीक्वेंसी ये कहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा, 50% पोस्ट प्यूबेसेंट, दैट इज प्यूबर्टल एज एडोलसेंट गर्ल्स में देखने को मिलेगा। एंड इट इज ऑलवेज कन्फाइंड टू ओव्यूलेटरी साइकिल्स, जहां पे ओव्यूलेशन हुआ रहेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होता है in the ovulatory cycles, and because of that prostaglandins there will be uterine contractions, thereby leading to dysmenorrhea. The pain is usually cured following pregnancy and vaginal delivery. The pain is related to dysrhythmic uterine contractions and uterine hypoxia because of vasopressin and prostaglandins। तो रिस्क फैक्टर्स क्या आएगा इसमें, अर्ली एज ऑफ मेनार्की, अभी पोलैरिटी या फिर हम क्या बोलते हैं यूट्रस का प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हुआ है, तो क्या रहता है वहां पे, रिसेप्टर्स ऑफ द cells of the uterine myometrium is not properly still established, polarity with the HPO axis is not properly maintained, तभी ये सेंसिटाइजिंग ठीक से नहीं होने की वजह से पेन आएगा। लॉन्ग मेंस्ट्रुअल पीरियड्स रहेगा तो भी पेन देखने को मिलता है। देन स्मोकिंग, द वुमेन हु इज स्मोकिंग, इंक्रीज्ड BMI बिकॉज ऑफ obesity, unhappiness at home or work, unsatisfied sex urge, or fear or loss of employment, anxiety over examinations। See basically मानसिक यहाँ पे स्ट्रेस किया गया है। दिस इज इवन मॉडर्न पीपल and accept that there is importance of समनस्यम, मन को शांत रखने का इंपॉर्टेंस
वो भी एक्सेप्ट करते हैं। देन पैथोफिजियोलॉजी, क्या है, क्यों दर्द हो रहा है, वाई वाई इट इज कॉजिंग द पेन, व्हाट मे बी द पोस्टुलेशन और व्हाट इज द थियरी बिहाइंड वाई देयर इज पेन। क्या होगा, मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन इन बेसिकली what we told is early menarche or pubertal age. What would be the happening, dysrhythmic uterine contractions, huh? Because of deficient polarity imbalance in autonomic nervous control of the muscles, uterine myometrial hyperactivity will be seen. Thereby, because of the hypertonus of circular muscles which are there in the myometrial and towards the fibers of the isthmus and internal os, it gets vasoconstricted, and thereby there is contraction of the uterus leading to pain. Huh? Other manifestation of autonomic upsets would be what presentation she would come to is bowel and bladder tenesmus with dysmenorrhea. Huh? This is when the patient or the mother will present the case to us saying she has mucus mixed stools. Now she comes with a complaint telling she has mucus mixed stools nearing to her menses or first or second day of her menses. There is tenesmus for defecation, and also she tells there is mucus. Then we have to understand that even stressing or irritating the prostaglandin, the uterine musculature, will also do the congestion or irritation of the intestinal mucosa, thereby causing problems with the bowel and bladder. Okay. Then stenosis at the internal os or narrowing of the cervical canal because of the constriction leads to difficulty in menstruation of the blood to escape, strong uterine contractions and pain. ये कहाँ पे पुट फोर्थ कर सकते हैं, दिस इज टू उदावर्तन योनि व्यापक, जहाँ पे हमने देखा है कि वातम विमर्ग गमन हो रहा है, ऊपर जा रहा है, और वहां पे अपानतः जो स्राव होना है, दैट इज द रक्त विच हैज टू कम इन अनुलोमन गति इज गोइंग इन प्रतिलोमन गति, दैट वी कैन पुट फोर्थ विद दिस अंडरस्टैंडिंग. ओके. Then hormonal imbalance, progesterone क्या करेगा, it stimulates the uterus, induces height on in isthmus and upper part of the cervix. So if we see post ovulation, when there is progesterone, it will increase the tone in the isthmus and upper part of the cervix. If it is वेग धारण ज्यादा करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा. We have to that is why we have to always maintain the anulomana gati of the vatam. Prostaglandins, how it is causing in ovulatory cycles, this is physiological. Ovulatory cycles में क्या होगा, under the action of progesterone, prostaglandins are synthesized from the secretory endometrium. जो endometrium shedding होता है ना, तो वो secretory endometrium से prostaglandins are secreted and it causes vasoconstriction. PGF2 alpha is a known vasoconstrictor and a vasodilator for PGE2 even E2 and PGF2 alpha. F2 alpha constrict करके डायरेक्ट दोनों करता है. तो इससे क्या होगा, ischemia of the myometrium will happen when it is constricting. It causes ischemia, thereby increases the uterine contraction and it causes pain. So whenever during periods there is the lower abdomen pain at the hypogastric region, हम क्या कहते हैं, वहां पे keep some hot fomentation. We usually tell no, because आपको वहां पे contraction हो रहा है, तो relaxation के लिए we ask them to keep some warm water bag, or we tell them to use some स्वेदनम वृक्षलिंग, वो कपड़े को हम तवा पे गरम करके ऐसे गरम शेक देते हैं ना, तो वो हम बताते हैं. या फिर प्रीवियस लाइक रेगुलर इसमें लोअर अभ्यंगम करके यूज करना है रेगुलरली. वहां अभ्यंग करने से भी क्या होगा, वहां का वात अनुलोमन होगा और वहां का जो मसल्स है that will get good tone and it will not be so contracting. Snehana will be the best treatment protocol. अभ्यंग उसमें उनको बताना है. धन्वंतर तैल अभ्यंग is very beneficial. फिर what we see, increased prostaglandin level also increase sensitivity of nerve endings to pain, है ना. prostaglandins also does sensitivity of nerve to pain. That is where this is physiologically there is pain. और vasopressin का जो postulation उन्होंने बताया, how it increases is not still clear, but
This is a powerful stimulant of non-pregnant uterus, particularly at the onset of menstruation. It increases prostaglandin synthesis and myometrial activity. Here, because of that, it causes ischemia and hypoxia, thereby leading to pain. Okay. और anatomical factors, like if congenital कुछ problem है, like uterine hypoplasia है, या फिर unequal development of Mullerian ducts है, septate bicornuate uterus है, या फिर cervical stenosis है, these anatomical factors will also affect in not flowing proper menstrual flow, अच्छा नहीं बराबर नहीं होगा, और contraction of the uterus may happen and thereby lead to pain. And others like endothelians and leukotrienes causes vasoconstriction, thereby increasing the myometrial contractibility. Here, clinical features, what would be seen? Pain sensation arises in the uterus and is related to uterine muscle contraction. It begins few hours before or just with the onset of menstruation. 1 to 2 days, may extend for 12 to 24 hours in severe cases. हम ये कॉमनली देखते हैं जब पीरियड्स आ रहा है, लाइक वंस द ऑनसेट स्टार्ट्स, देयर इज अ माइल्ड पेन विच विल इंक्रीज टू इट्स intensity, and once the flow starts properly then it will slowly settle down, एक स्टेज पे थोड़ा कम होगा. फिर अगर वात प्रकोप हो गया, हाँ, फॉर एग्जांपल शी डज वेग धारणा इवन ड्यूरिंग हर मेंसेस, देन अगेन वो बढ़ेगा, या फिर वात प्रतिलोम गति में जाने लगा, या फिर उसको ब्लोटिंग है, फॉर एग्जांपल द गर्ल्स are eating lots of junk, they're not having proper water intake और अनुलोमन नहीं हो रहा है, तो those girls, even though वो एक पीक पे जाके जब पेन कम होगा, अगर फिर शाम को, सी कॉमनली ब्लोटिंग क्या होता है, सुबह में सभी मोशंस क्लियर हो जाता है, तो शाम को जो सुबह से लेके शाम तक खाते हैं तो उसका ब्लोटिंग होने का टाइम शाम पे आता है. So during that time, if the course of this pain has reduced even in morning, evening again because of the bloating, again the pain intensity increases because there is again vata which is getting manifested and causing udavarta, thereby leading to pain. Okay? And see, this pain relives on menstruation. This is for our anulomana of the flow, that is tatshanam labate sukham. देन स्पैस्मोडिक है या कॉलिकी टाइप है, वो देखना है हमको कि कंटिन्यूअसली बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है या पेट में मोरोड़ के आता है, ये पूछना है उनको. और वेदर इट पेन इन मेनली हाइपोगैस्ट्रियम में रहेगा, तो दैट इज यूट्राइन रिलेटेड, radiating to the back and inner and medial aspects of thigh. See why the site what we told is so important is like, अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया, बहुत डिस्मेनोरिया है, तकलीफ हो रही है, तो सिंपल आप भी कर सकते हैं. इट इज लाइक यू टेल द पेशेंट दैट यू कम टू आवर ओपीडी फॉर अभ्यंगम एंड स्वेदम, या फिर हम उनको परिषेक कर सकते हैं. अभ्यंग करने का अपान स्थान को, दैट इज द होल हिप रीजन एंड द इंग्वाइनल रीजन, विद द होल हेल्प ऑफ द अटेंडेंट, लाइक उसकी मदर का परमिशन लेना है, उनको एक डिस्पोजेबल व्हाट इज पैंटीज देना है. और इंग्वाइनल साइड बेसिकली द अपेंडेजेस, हमको वो पार्ट और इनर थाइज एंड बैक साइड अप टू L1 L2 L3 L4 L5 अप टू S1 एंड नीचे, वहां से ग्लूटल रीजन स्टार्ट फ्रॉम T10 एरिया से अभ्यंग स्टार्ट करना है अप टू द थाई, एंड सामने भी जो अम्बिलिकल लाइन है वहां से लेकर पूरा थाई तक अच्छे से अभ्यंग करके परिषेक दे सकते हैं. तो दशमूल परिषेकम एंड अभ्यंग विद धन्वंतरम तेल, दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल. पोस्ट दिस आप उनको मात्रा बस्ती खाना खाना है कुछ, और फिर मात्रा बस्ती देनी है 7 दिन या फिर 5 दिन, ऐसे एक 3 साइकिल्स देकर उनको रेक्टिफाई द दिनचर्या, उनको दिनचर्या को फॉलो करना है प्रॉपरली, और योगा आपको उनको एजुकेट करना है, योगासन, जिससे वो वात अनुलोमन होगा. ठीक. देन लो बैक इनर्वेशन ऑफ इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो-इंग्वाइनल नर्व्स T12 L1 L2, ये वहां पे पेन होगा. इन सीवियर अटैक्स सिस्टमिक चेंजेस दिखाई देगा,
और जो हमने अभी देखा है। देन हम आयुर्वेदा में इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? वही तोदावर्तनी योनि व्यापक हम उनको समझ, आई थिंक एवरीबडी नोज दिस, दिस इज लाइक आपने यूजी में सब लोगों ने योनि व्यापक पढ़ा है। तो ये हम उदावर्तिनी योनि व्यापक को कोरिलेट करते हैं। इसमें क्या होता है, मल मूत्र वायुर अध करो, अधोकर रोग, दैट इज नीचे अध प्रदेश रोग है। तो तत्पर्य गुदग्रह, वहां पे तत्पर्याय गुदग्रह भी हम उसको बोलते हैं। ये रोग विशेषता उदावर्त है, और ये उदावर्त योनि व्यापक को हम कोरिलेट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, वेगात उदावर्तनात् योनिम उदावर्तयते अनिलः स रुभार्ते रजः कृच्छेण उदावर्तम विमुच्यते आर्तवे स विमुक्ते तु तत्क्षणं लभते सुखम रजसो गमनात् ऊर्ध्वम उदावर्तिनी उदयी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, वेग धारणा, मेन कारण इस वेग धारणा। ठीक है, तो वेग धारण करने वाली जो स्त्री है, उसमें उनका अनिल, दैट इज अपानवात दुष्टि होगा, और वो कैसे ऊपर जाएगा, दैट इज प्रतिलोमन गति, ऊपर जाकर आर्थ जो नीचे आने का है वो वहीं पे स्टक होने की वजह से क्या होगा, वो सारुगार्ता रजः कृच्छेण उदावर्तम विमोचति। तो क्या बोलते हैं, वो दर्द के साथ, रुग एंड बहुत पेन के साथ, वो रज कृच्छेण बहुत कष्ट के साथ बाहर आएगा, विमुचति। आर्तवे सा विमुक्ते तो तत्क्षणम लभते सुखम, जब वो क्लियर होगा यूरिन, सॉरी, जब वो फ्लो बाहर आएगा तो उसका पेन कम होगा। और क्या बोलते हैं, वो योनि मुदावर्तेते इति योनि मुदावर्तनाम करोति उदावर्तम इति ऊर्ध्वम नित्यम कविकाराणाम रजस ऊर्ध्वगमनात् उदावर्तनी इत्युच्यते। दैट्स द रीजन वेयर प्रतिलोमन गति ऑफ द वायु इफ टेक्स प्लेस एंड द रज इज गोइंग अप, देन इट इज कॉल्ड उदावर्तनी। फिर यहाँ पे वेग, वेगात उदावर्तनात् अधोवात अधिरा, दिस इज सी बेसिकली यहाँ पे सपीड़िता स्यात् उदावर्तम बुधम रज रक्तम। पीड़ित, दैट इज दर्द के साथ जब वो रजत को बाहर आएगा तो दैट इज कॉल्ड उदावर्तम। एंड सफेनिलम उदावर्तम रज कृच्छेण मुंचति, वात vitiating, basically the vata is the vitiating factor, thereby you can see all the vata lakshanas, fenila, rukshatanu, all the lakshanas which are vata pradhanatha will be seen. Then sathu yoni kafein na udavartam munchati, this is vinuchati, that is basically अगर कफा associated है तो clots जो आते हैं, तो योग रत्नाकर ने सॉरी हाँ, योग रत्नाकर ने योनि रोग अधिकार में उसको एक्सप्लेन किया है, अगर कफ विशेष रहा तो। देन रजकृच्छ्रता, डिफिकल्टी ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लड। आर्तव, जब विमुक्ते तत्क्षणम सुखम, दैट इज द पेन इज रिलीव्ड इमीडिएटली फॉलोइंग डिस्चार्ज। फेनिलम, बिकॉज ऑफ द वाता बीइंग विशेडिंग फैक्टर, वी सी ऑल द वातज लक्षणस। देन अन्य वात वेदना, बैक एक, बबल एंड ब्लैडर टेनेसिस को हम वहां पे कंसिडर करेंगे। कफ संश्रित आर्तव, अगर कफ उसके साथ रहा तो क्लॉट्स, कॉमनली पेशेंट कंप्लेन्स विद द क्लॉट्स आते हैं, अगर क्लॉट्स पास हो जाएंगे तो पेन कम होगा। देन बद्ध आर्तव, डिस्चार्ज ऑफ द क्लॉटेड ब्लड, दैट इज क्लॉट्स। देन इसमें ट्रीटमेंट क्या आता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो मॉडर्न में बताया है, which will inhibit the prostaglandin secretion or binding, that is phenamic group, phenamic, this is commonly mefenamic acid, हर कोई लिखता है, देता है, लेता है, all women know mefenamic acid is being given, and then flunamic acid is also there, ibuprofen, naproxen or indomethacin 25 mg 8 hourly. This is, I think everybody knows this protocol or what treatment is being given. Commonly we write or we take or we give is mefenamic acid. Okay, हार्मोन थेरेपी में अगर वो ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ओसीपी पिल्स अगर हम देंगे, it will, they are not interested in going for any pregnancy, then we can give combination of estrogen progesterone, that is from day 5 to day 25. It will have an ovulation
but these cycles are painless and to be given for 6 months. ये common है. Patients will come to us with all these histories. They'll come to us telling that we had gone to doctor. उन्होंने हमने उनको बोला कि हमको पेन है, साइकिल्स बराबर से नहीं हो रहा है, तो इमीडिएटली डॉक्टर ने हमको ओसीपी का पिल दिया, 3 महीने का साइकिल करने के लिए बताया. तो हमने वो 3 महीना ले लिया एंड वी हैड रेगुलर साइकिल्स. बट नाउ अगेन इट हैज फ्लेड अप. We don't have proper flow of the menstruation and we don't have regular cycles, and there is pain whenever there is cycles. So in that case, we are the one who can properly channelize. We have very good treatment for such kind of cases. This is, see, the intention of this explanation also is like they want to sensitize the receptor or the polarity of the uterine musculature with the HPO axis. That is the reason they are giving hormones. It is the protocol which they follow. It is we cannot tell it is not completely wrong, but it is basically to sensitize the HPO. Agar even see, for example, the sensitization doesn't happen, then it is good to give hormones so that the brain, that is hypothalamus pituitary, will start understanding that we have to secrete. उनको पता करने के लिए this is also one of the better way. And then our treatment is also one of the best treatment what we have seen. There are so many studies which have been done, so many dissertation works have been done on Udavartini Univapath. Okay. Here what will happen, because of the giving OCP, there is prolonged suppression of the endometrium, decreases the prostaglandins, atrophied decidualized endometrium, low levels of prostaglandin, thereby their menstrual pain is less, and menstruation which happens is like anovulatory. थोड़ा bleeding ज्यादा होगा लेकिन pain कम होगा. प्रोजेस्टेरोन और जेस्टेरोन जो है ये ओव्यूलेशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन ओवेरियन स्टेरॉइडोजेनेसिस को alter करेगा. Thereby it is also given on day 5 to day 20th of the cycle for 3 to 6 months. Then surgical treatment में आता है dilatation of the cervix. यहाँ पे स्लो हम क्या हमारा यूट्राइन साउंड लेते हैं, रोज उनको थोड़ा थोड़ा डायलेट करते जाएंगे. पहले यूट्राइन साउंड से हम डायलेट करेंगे, फिर बाद में 0 और 1 इतना ही, वो 2 ही लेकर डेली हम उसको डायलेट करेंगे. और उसके बाद हम एक पिच्चू रखेंगे और उसको क्या होगा, उससे वहां का जो मस्कुलेचर है, दैट इज द ऑस और द फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू ऑफ द ऑस विल बिकम लूजन. देयर बाय इट विल कट डाउन द पेन. देन बायलैटरल ब्लॉक ऑफ द पेल्विक प्लेक्सस, प्रीसैक्रल न्यूरेक्टोमी, ये सर्जिकल है, लैप्रोस्कोपिक करते हैं. तो वहां पे क्या करेंगे, हम T11 T12 का जो पाथवे है वो हम ब्लॉक करेंगे. देयर बाय पेन विल बी रिड्यूस्ड. आयुर्वेदा में हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली दिस इज क्षीर बस्ती साधितम. सी उदावृतम अपान उदावतायाम अनुपमांस रसम. यहाँ पे अनुपमांस रसम क्षीर स्वेद, अनुपमांस रस खाने के लिए हम उनको बोलेंगे, इनटेक करने के लिए. और क्षीर स्वेद हो दशमूल त्रिवृत क्वाथ कल्क सिद्ध स्नेह पान अनुवासने उत्तर बस्तीशु. उत्तर बस्ती भी इंपॉर्टेंट है, या फिर हम कॉमनली अनुवासन बस्ती से इसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं. दैट इज एक तो दशमूल सिद्ध क्षीरवस्ती और दशमूल सिद्ध क्षीर तैल अनुवासन बस्ती और उत्तर बस्ती. एंड इंटेक ऑफ मांसरस, स्नेहन एंड स्वेदना. देखिए स्नेहन स्वेदना का इतना इंपॉर्टेंस है इन उदावर्तिनी योनिवापत. अगर पेशेंट आपके यहाँ नहीं भी आ सकता है तो आप उनको घर में भी बता सकते हैं कि तेल से अभ्यंग करिए अच्छे से और गरम गरम पानी से स्नान कीजिए, या फिर ask them to have 6 bath and it will obviously reduce. and उनको रजस्वला चर्या एक्सप्लेन करना है and ask them to eat what is to be eaten during Rajaswala. That is what is told, ghee and chali. That is उनके करतल में जितना चावल आएगा वो उसको घी डाल के खाना है.
ये करने से क्या होता है उसके साथ, वी एडवाइस हियर जीरा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जीरा को भूनते हैं, दैट इज रोस्ट द जीरा, मेक अ जीरा पाउडर। और हम उनको उसके साथ थोड़ा सा हींग, जो घी में ही गरम करते हैं, जीरा और हींग का पाउडर, वो गरम चावल जो रहता है उसके साथ घी डाल के थोड़ा सा सेंधव नमक उसको डालकर 2-3 ग्रास तो खाने के लिए बताते हैं। इससे उसको बहुत रिलीफ आता है। दिस इज जीरा कषाय, तो आई थिंक एवरीबडी नोज इट्स एंटी स्पास्मोडिक, और हम कॉमनली देते हैं जीरा कषाय विथ घृतम। अगर इमीडिएट आपको पेशेंट है बहुत दर्द से आया है, तो आप ओपीडी के लेवल में ही, पेशेंट अगर बैठ नहीं सकता है, 2 योगराज गुगड़ू खिलाइए या फिर धन्वंतरी वटी खिलाइए, ऊपर जीरा कषाय बनाने के लिए बोलिए आपके असिस्टेंट को, उसमें थोड़ा सा घी डाल के पीने को दीजिए इमीडिएट। एंड पीने के बाद पवन मुक्तासन में सुलाइए, तो पेन जल्दी कम हो जाएगा। ये आप करके देखिए, दिस इज वन ऑफ द इमीडिएट रिलीविंग थिंग।